Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Department of English. Well, students, we are about to start our digital education system that is powered by Superior Group of Colleges, Miyawali. Well, students, you know the significance of academic process. Uh, to achieve the ultimate, this process is generated to fulfill and accomplish the requirements of the students, the requirement of educational process. Then we are about to start right now the chapter 2. Chapter 2, student, as you already know, we have already started it in our physical classes as well. So we will be continuing with that chapter, that is responsibilities of the youth. This is a chapter that is based on the speech made by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in Dhaka University. Well, student, the convocation was taking place over there, and Quaid-e-Azam was honored and invited as a chief guest there. So Qaid laid down some points, some significant elements and features for the youth of that time to rebuild Pakistan. Well, continuing with the passage number 3, page 13, let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ something of the difficulties. Difficulties mean hardships, difficult times, tribulations that we have overcome. Overcome mean dominate, suppress, repress, check, subdue, quash, quell, stop. ये सारे वर्ड जो हैं इसके बड़े इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स सिनोनिम्स हैं. That we have overcome mean dominate, suppress, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ. And the dangers mean risks, menace, danger, perils that still lie ahead mean about to be experienced, exist के मैनी में आएगा. मैं आपको अब कुछ उन मुश्किलात के बारे में बताना चाहता हूँ जिन पर हम काबू पा चुके हैं और उन खतरात के बारे में भी जो अब आगे आने वाले हैं. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Well, students, बहुत एक important word है thwarted. Thwarted mean frustrate, hinder, foil, check, stop, impede, block, prevent. इसका मतलब होता है नाकाम बना देना, रोक देना, खाक में मिला देना, दांत खट्टे कर देना. In their desire mean wish, longing to prevent means stop, block. The establishment, setting up of Pakistan का, our enemies our enemies turned their attention, paid their attention, pay heed to, pay concentration to, finding, discovering ways and means. Well, student, ways and means is an idiom that means resources, the ways, the methodologies. To weaken mean students debilitate, exhaust, enervate, tire, enfeeble, sap, prostrate, cripple, devitalize, incapacitate, isolate, soften, waste, deplete. इसका मतलब होता है कमज़ोर बना देना, नहीफ़ नज़ार बना देना, खोखला कर देना. ये सारे मैनी के लिए वेल स्टूडेंट इस्तेमाल होता है. एंड डिस्ट्रॉय मीन डेवस्टेट, तबाह कर देना. एनिहिलेट के मैनी में भी इस्तेमाल इसको हम करते हैं. तो अब इसका मैनी करते हैं. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको ज़रा गौर से देखना है. क़याम पाकिस्तान को रोकने की अपनी ख्वाहिश की नाकामी के बाद हमारे दुश्मनों ने अपनी पूरी तवज्जो ऐसे ज़राए तलाश करने की तरफ मबजूल की या मरकूज़ की जिससे पाकिस्तान को या हमें कमज़ोर बनाया जाए और हमें तबाह व बर्बाद कर दिया जाए. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi
Holocaust. Hardly, barely, scarcely had the new state come into being. Come into being mean created, मार्ज़े वजूद में आना. When came mean occur, happen, होना. The Punjab and Delhi Holocaust, बहुत important word, well student. Holocaust mean massacre, slaughter, carnage, bloodbath, butchery, extermination, genocide, and annihilation. All these words are pretty important as far as MDCAT and ECATs are concerned, pretty much required for the students to go through the synonymous word with that. So coming up with the translation, बमुश्किल ही हमारी ये नई रियासत अभी मार्ज़ वजूद में आई थी कि जब पंजाब और दिल्ली का वो कत्लेआम, वो कत्लो गारत जो है उसका आगाज़ हुआ, या वो उसका स्टार्ट हो गया, वो शुरू हो गया. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Thousands of Hazarha men, mard, women, khawateen and children were mercilessly, well student, cruelly, brutally, severely, heartlessly, savagely, callously, pitilessly and viciously. All these are the synonymous word as far as this word is concerned. बेरहमी के साथ, बेहीमाना अंदाज में, butchered, well, killed, slaughtered, massacred, exterminated, murdered, eliminated, liquidated, mutilated, slew, slayed and slain. These are the words which are the synonymous words for butchered, मतलब कत्ल कर देना, काट डालना. And millions were uprooted, और लाखों लोग जो थे were uprooted. Another important one, uprooted mean moved, migrated, emigrated, immigrated, transferred, relocated. uproot का मतलब है बेघर कर देना, घरों से निकाल देना, हिजरत करके घर छोड़ के चले जाना, ठीक है, फ्राम देयर होम्स. तो हज़ारा मर्द, ख़वातीन और बच्चे जो थे उनको बड़ी बेरहमी और बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया और लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर हिजरत कर गए. Over 50 lakhs of these arrived in Punjab within a matter of weeks. तकरीबन 50 लाख के लगभग ये लोग जो हैं अराइव्ड, रीच्ड, पहुँचे इन पंजाब में विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, चंद ही हफ्तों में. तकरीबन 50 लाख लोग चंद ही हफ्तों में पंजाब आन पहुँचे. The care and the rehabilitation of these unfortunate refugees stricken in body and in soul presented problems which might well have destroyed many as well as established a state. The care mean look after होता है, rehabilitation, well, rehabilitation mean reform, improvement, amendment, correction, betterment, rectification, alteration, amelioration, change and adaptation. बहाली, रिहेबिलिटेशन का मतलब बहाली, किसी चीज़ को दोबारा अपनी असल हालत में वापस ले आना. ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट मीन अनलकी, रेफ्यूजीज मीन एक्साइल, आउटकास्ट्स, कास्टअवेज, डिपोर्टीज, एक्सपेलीज, एक्सक्वीज, मैरून्स, प्रोडिजल्स. तो इसका मतलब पनाह गुज़ीन होता है, मुहाजरीन होता है, जो हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, इनको हम पनाह गुज़ीन, मुहाजरीन कहते हैं स्टूडेंट. स्ट्रिकन मीन अफ्लिक्टेड, स्ट्रक, रैक्ड, अफेक्टेड, हिट एंड स्मिटन. these are the pure words, synonymous word with stricken mean मारे हुए, in body and soul, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर, जिस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब जिस्मानी तौर पर भी वो काफ़ी कटे हुए, ज़ख्मी, और रूहानी तौर पर भी वो काफ़ी मजरूह, रूह में इस तरह हम कहते हैं उनकी रूह मजरूह हो चुकी थी. presented, shown problems, मसाइल which might well have destroyed, devastated many a well established, well set up, अच्छी खासी
कायम जो स्टेट्स रियासत है उसको भी। तो पूरा मैनी हम इसका कर लेते हैं। इन बदकिस्मत मुहाजरीन की बहाली और देखभाल के लिए जो कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर अजियत शुदा थे, ऐसे मसाइल सामने आए जो शायद किसी अच्छी खासी कायम शुदा रियासत को भी तबाह बर्बाद और उसको हिला के रख सकते थे। मतलब पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली ही बारज़ वजूद में आया था, तो उसके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम था। अगर कोई अच्छी खासी एक रियासत जो पहले से चल रही होती है, अगर उसको भी ये प्रॉब्लम होते तो डेफिनेटली उसको भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो बट दोज ऑफ आर एनिमीज who had hoped to kill Pakistan at the very inception by these means were disappointed. But those of our enemies, लेकिन हमारे वो दुश्मन who had hoped, जिन्हें उम्मीद थी, expected, जिनको उम्मीद थी, to kill Pakistan, kill mean exterminate, wipe out, खात्मा कर देना पाकिस्तान का at its very inception. Inception mean beginning, birth, dawn, outset, start, commencement, or origin. These are the synonymous words, well student, that you have to keep that in mind. आगाज, नुक्ता आगाज, शुरू होना किसी चीज़ का by these means, इनके ज़रिए were disappointed. Disappointed mean desolate, desolate mean मायूस होना। तो पूरा मैनी हम इसको देख लेते हैं। लेकिन हमारे वो दुश्मन, लेकिन हमारे ये दुश्मन जिनको उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान को शुरू में ही ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे, अपने इन वसाइल के ज़रिए उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड द शॉक ऑफ दैट अपहेवल, बट आल्सो इट हैज़ emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. Well, not only ना सिर्फ has Pakistan survived mean well student, survived mean exist, lived, endured, prevailed, subsisted, persisted. The upheaval mean tumult, uproar, cataclysm, storm, earthquake, bullyvesment. upheaval का मतलब हंगामा, फसाद, इनकलाब, तब्दीली और फसाद बर्पा होना जिसको हम कहते हैं। तो ना सिर्फ जो है ना पाकिस्तान बच गया, द शॉक का मतलब यहाँ पे अगर हम कहें तो शॉक का मतलब इसको कहते हैं अटैक कह सकते हैं, ठीक है, सेटबैक कह सकते हैं, नुकसान को कह सकते हैं। बट आल्सो इट हैज़ emerged मीन appeared, ये नमूदार हुआ, स्ट्रॉन्गर मज़ीद मजबूत होकर, मोर chastened means subdued, restrained, quiet, sober, somber का वर्ड यूके में पढ़ते हैं, मतलब अमेरिकन जो है वो sober पढ़ते हैं और यूके के जो लोग जो हैं वो somber का वर्ड जो है वो पढ़ते हैं। इसको मतलब मुश्किलात और मुसीबतें और तकालीफ के बाद जो एक सुलझाव सा पैदा होता है और संजीदगी पैदा होती है, उसको हम चेसन कहते हैं। तो एग्जैक्टली सेम मीनिंग जो है वो दे रहा है उसका। एंड बेटर इक्विप्ड मीन प्रिपेयर्ड दैन एवर, पहले की निस्बत। पूरा मैंने हम इसका करना चाहेंगे जी। लेकिन यही हमारे वो दुश्मन जिनको उम्मीद थी कि वो शुरू में ही पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे, उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ पाकिस्तान इस नुकसान और तकलीफ़ के वक्त में कायम रहा और इस अफरा तफरी और फसाद के दौर में कायम रहा, बाकी रहा, बल्कि पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत तर, कहीं ज़्यादा एक संजीदा सुलझा हुआ और बेहतर इख्तियार मुल्क के तौर पर जो है ना वो सामने आया। There followed in the rapid succession the other difficulties, such as withholding by India of our cash balances, of our share of the military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province.
There followed after that, इसके बाद in a rapid, well student, rapid mean fast, quick, swift, speedy, brisk, hasty, breakneck, fleet, बहुत तेज, बहुत जल्दी, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन का मतलब है सीरीज, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, चेन, ट्रेन, प्रोग्रेशन। सक्सेशन मीन वक्फा, मुसलसल, जके बाद दीगरी होना, वक्फे वक्फे से, जिसको हम कहते हैं होना। अदर डिफ़िकल्टीज, हार्ड से मुश्किलात के बाद, सच एज द विथहोल्डिंग मीन रिस्ट्रेनिंग, कन्फाइनिंग, कर्बिंग, डिटरिंग, हिंडरिंग, प्रोहिबिटिंग, रिस्ट्रिक्टिव, रोक लेना, मतलब किसी चीज़ को देने से इनकार कर देना, ठीक है। बाय इंडिया, हिंदुस्तान की तरफ से, ऑफ आर कैश बैलेंसेस मीन हमारे जो रकूम थी, जो उन्होंने हमें देनी थी पाकिस्तान को, ऑफ आर शेयर मीन हिस्सा, और हमारा जो हिस्सा था ऑफ मिलिट्री, फौजी इक्विपमेंट मीन टूल्स, फौजी साजो सामान का। एंड लेटली मीन वेल स्टूडेंट रिसेंटली, न्यूली, फ्रेशली, ओनली, लेटरली, हाल ही में, और हाल ही में द इंस्टीट्यूशन मीन डिपार्टमेंट, पोर्शन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट, थॉरो, होल, इकोनॉमिक, मुआशी, ब्लॉकेड मीन स्टॉपेज, रोक देना किसी चीज़ को, ऑफ योर प्रोविंस, आपके सूबे का। इसके बाद यके बाद दीगरे कई ऐसी मुश्किलात आईं, जैसे कि हिंदुस्तान का हमारा जो रकूम हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए जो रकूम वाजिबात थी, वो रोक लेना। उसके बाद फ़ौजी साजो सामान का जो हिस्सा है पाकिस्तान का, वो ना देना, और हाल ही में आपके एक सूबे का जो मुआशी जो मामला है, उसको रोक लेना, मुकम्मल तौर पर उसको पाबंद कर देना, उसको मुकम्मल तौर पर रोक देने का अमल जो है, ये वाक़यात पेश आए। I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it's essential that you should take note of these developments. I have no doubt, मुझे कोई शक नहीं है, I'm uncertain about that, that all the right-thinking men के तमाम सही सोच रखने वाले जो अफराद हैं इंडियन डोमिनियन का मतलब जो है स्टेट होता है, रियासत होता है। डिप्लोर का मतलब कंडेम, डिनाउंस, सेंशर, क्रिटिसाइज ही है। अमेरिकन जो हैं क्रिटिसाइज IZ के साथ लिखते हैं, जबकि ब्रिटिश जो हैं वो S के साथ लिखते हैं। उसके बाद एक्सकोरिएट का मतलब भी मातम करना, अफसोस करना, कंडेम करना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई हैव नो डाउट दीज हैपनिंग मीन इवेंट्स, वाक़यात, हालात, एंड आई एम श्योर द डिफ़िकल्टीज, द एटीट्यूड मीन मैनर ऑफ द माइंड, उनके जहन का, दैट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड, जिम्मेदार रहा है, फॉर देम विल चेंज, बदलेगा। बट इट्स एसेंशियल मीन इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ मीन टेक इन टू अकाउंट, कि आप जायज़ा लें, ख्याल रखें, दीज डेवलपमेंट्स मीन जहाँ चेंजेस होगा, तब्दीलियाँ, जो एवोल्यूशन हो रहा है उसकी बात कर रहा है। वेल मुझे इस बात के कहने में कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की रियासत के अंदर सही सोच रखने वाले जितने भी अफराद हैं, वो इन वाक़यात पर अफसोस, इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उनकी का ये जो ज़हनी रवैया है वो यकीनन ज़िम्मेदार रहा है, और ये चीज़ ज़रूर बदलेगी। उनका ये रवैया एक दिन आएगा कि वो ज़रूर बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है, सबसे अहम बात जो है कि आपने इन बदलते हुए हालात, इन तब्दीलियों का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी। तो दिस इज़ what we have for the day. I hope so you must have enjoyed the lecture.
Students, you have to go through these passages thoroughly so that you may comprehend, you may understand what this speech is all about. The comprehension of the chapter is pretty much required, student. It's me, Professor Ghulam Qasim, signing off from here. It's goodbye.